ठीक है, अभी अभी देखो आपको बच्चों की आवाज आ रही है गाइस, कुछ बोलो जरा ऑनलाइन वाले, और ऑनलाइन वाले हीरो हीरोइंस। यस सर। इधर अली, यस सर, यस सर। आप बोलोगे तो कुछ सुनाई देगा। प्रेस से बैक कैसे जाता दिख ही नहीं रहा है सर कुछ। कब होगा ये दूसरे साइड का क्या? इसको तीन इधर इधर सर आगे आपको आवाज आ रही है? आप पूछ लो ना बच्चों से, बात करो बच्चों से। वो आ जाएगा जी। कैमरा से दिख रहा हूँ मैं दिस। शास्त्री जी दिख तो रहे हो। क्या स्क्रीन पे दिख रहा है जो ब्लर लिखा हुआ? दिख रहा है ना सर। ब्लर दिख रहा है? हाँ शास्त्री सर जी अभी कुछ परफेक्ट देर दिख बाद रहा है बुला सर। रहे हैं। सर अभी हाँ भी परफेक्ट दिख रहा है। दिख रहा है। यस सर। यूज use Euclid division हाँ, lemma use Euclid so division that lemma to show that the cube of any positive integer is of the form of 9m and 9m plus 1 or 9m yes sir. plus 8. So what we were taking, like we were selecting a number, let's say a be a any positive integer. Such that a is equal to 3q plus r. Just like the a is equal to bq plus r, I'm writing here a is equal to 3q plus r. So from this one, we are able to know that 0 is less than equal to r is less than 3. So we can write numbers are, r की वैल्यू आपको 0 लेनी है, नंबर 3q होंगे, r की वैल्यूज 1 लोगे, so number will be 3q plus 1, r की वैल्यू 2 लोगे, so numbers will be 3q plus 2. Can we take r is equal to 3? Yes or no? No, we cannot take r is equal to 3 as r is less than 3. So now, as per the question, we have to make cube to given number. So we will take cube. So write down on taking cube of above numbers. मैं सभी numbers के cube लेना चाह रहा हूँ. So we will write 3q cube, 3q plus 1 cube, 3q plus 2 cube. Now we know a formula a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. So we will split these two terms in this form. So now we can say numbers are 3q cube, that is 3q is 27. So 27q cube, comma, a plus b whole cube. So 3q cube is 27 cube plus, what is the cube of 1? It is 1. So we will write 1 here plus 3a square b. a की जगह 3q है, so 3q का स्क्वायर करेंगे into b. b की जगह 1 है तो 1 से मल्टीपल करेंगे. 3 into 3q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 into 3 27, 27q square. So we will write 27q square plus 3ab square. So 3a की वैल्यू 3q है and b square 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं. So 3 into 3, that will be 9q. So this is the second number. And third number, 3q plus whole 3q plus 2 whole cube. So now we will say 27q cube plus 2 cube is
8 plus 3ab square 2 square. So 3 into 3 9, 9 into 4 36 cube. So we will write 36 cube here plus 3a square b, 3 का स्क्वायर 9, 9 into 3 27 q स्क्वायर, b की वैल्यू 2 है, so 27 into 2 that is 54 q स्क्वायर. So this is the third number. Okay, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नीचे वाले मिटा दूं? No. Just observe this one. This is 9 times 3 cube cube. Can we write like this? Okay. So as per the proof, that what we have to prove, like 9m plus 1, 9m plus 2, like this one, no? 9m plus 8, like this one. So just we will collect all the numbers from this one in terms of 9 only. So take 9 common from this one. So we can take 9. So it will be 3 cube cube, 3 cube plus, सर नहीं दिख रहा है. नहीं दिख रहा है? Wait 1 minute. अब दिख रहा है? यस सर. So 9 मैंने कॉमन लिया है, तो 9 3 are 27 क्यूब, 9 कॉमन लिया है तो 27 क्यू स्क्वायर, 9 कॉमन लिया है तो यहाँ पर क्यू रिमेनिंग आएगा, एंड देयर इज अ 1, so plus 1 is there. Now from this one, so we will take 9 common, so this is 3 q cube plus, this is 54 q square, 9 कॉमन ले रहा हूं मैं, 6 q square plus 36 is there, so we will write 4 q plus 9 कॉमन ले सकते हैं क्या इससे? नहीं, so stop here, plus 8. So let's say this quantity is m, then numbers are 9m. If this quantity is m, then number is 9m plus 1, and this is 9m plus 8. जो भी नंबर्स यहाँ ब्रैकेट में है उसे मुझे m कंसीडर करना है. So 9m, 9m plus 1, 9m plus 8. इसमें से ऑड कौन कौन से हैं, इवन कौन कौन से हैं, ये आपको कंफर्म होना चाहिए. कौन कौन से इवन है क्या कोई इवन? 9m and 9m plus 8. क्या ये इवन है क्या? No. हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर मैं 2q लिखता हूँ, 4q लिखता हूँ, 6q लिखता हूँ, तो इस 2 से आप पता कर लोगे इट इज इवन. Yes. अगर मैं 5q आपसे पूछूं, देन इट विल डिपेंड अपॉन q, कि q क्या ले रहा हूँ उससे इवन और ऑड का पता चलेगा. अगर q की वैल्यू 1 लेता हूँ 5, सर ये ऑड हो गया. लेकिन अगर मैं q की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो ये 10, सर ये इवन हो गया. सो वी कैन नॉट से दिस इज इवन और ऑड. क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि क्यूब ऑफ एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस लाइक दिस वन. इन तीन में से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि ये इवन है या ऑड है, हम सिर्फ इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं. जैसे कोई भी नंबर आप अपने मन में लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए, 5, तो 5 का क्यूब करते हैं सर 125 आ रहा है. तो 25 को 9m, 9m plus 1 या 9m plus 2, वेयर m इज इंटीजर. ओके, तो किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं? 9 से डिवाइड करो, कितने आएंगे? थर्टीन इंटू 9 कितने हुए? 117. इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितने आएंगे? 8 प्लस 8, ये वाला फॉर्मेट है. आ गया? ओके, कोई भी दूसरा नंबर सोचो. 7 का क्यूब करेंगे तो कितने आएंगे? 343. 343 को मैं 9 के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहता हूँ. इसको 9 से डिवाइड कीजिए,
39 37 ओके 37 मैंने लिखा 37 इंटू 9 करेंगे कितने आएंगे 343 प्लस 10 के टर्म में तो है ही नहीं, तो 8 से करना पड़ेगा 38 इंटू 9 कीजिए 9 it is a 72 9 is a 27 plus 7 कुछ गलती हो रही सॉरी 342 तो प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखो इस वाले फॉर्मेट में तो कोई भी नंबर्स ले लोगे 5 और कोई भी इंटीजर का क्यूब तो आपको इनमें से ही किसी फॉर्मेट में दिखेंगे, कोई दूसरा फॉर्मेट नहीं रहेगा। ये स्टेटमेंट की ये सब एल्गोरिदम या लेमा की जरूरत क्यों पड़ रही है? हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, हम कैसे जजमेंट ले रहे हैं कि इसका क्यूब होगा, वो कौन सा रिलेशन बना रहा है। तो हम इन एल्गोरिदम के थ्रू हम डायरेक्टली बता पा रहे हैं कि ये नंबर जो भी क्यूब का निकल कर आएगा वो ऑलवेज इन तीन में से ही किसी एक फॉर्मेट में होगा, इसके अलावा किसी दूसरे फॉर्मेट में नहीं होगा। पहले यूक्लिड लेमा के पहले हम ऐसा कोई भी डिफिनेशन नहीं दे पा रहे। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन सबको पता है, व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? सो व्हाट इज प्राइम नंबर? It has only two factors, One and number itself. Okay, one is prime number or not? One को प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं करते। ओके, टू इज ए प्राइम नंबर और नॉट? Yes. Yes, 2 is a prime number. Next prime number is 3. Next number is 5, 7, 11, 13, 17, 19 up to, so इस तरीके से नंबर है। These numbers are divisible by either one or number itself. These are prime numbers. Okay. अब किसी भी नंबर का अगर मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो मैं इन्हीं नंबर के टर्म्स में उनको लिखना चाहूंगा, इनमें से ही वो नंबर्स निकल कर आएंगे। अब देखते हैं कि वो नंबर, जैसे कि मैंने लिखा 12 को मैं डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, तो उसे डिविजिबल है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। यस है, तो मैंने यहाँ पर 6 लिखा। इज दिस 6 इज डिविजिबल बाय 2 अगेन? यस, मैंने 2 लिखा, यहाँ पे 3 आया। 3 इज डिविजिबल बाय 3 इटसेल्फ, सो यहाँ पर 1। जैसे ही 1 आ जाएगा मैं स्टॉप कर दूंगा। ओके, सो 2 into 2 into 3, we will write 12 is equal to 2 into 2 into 3। कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में जितने टाइम रिपीट करता है हम एक्सपोनेंट उतनी हाई करते हैं। सो 2 is repeated 2 times, that's why we will write 2 square into 3। This is called as prime factorization of a given number. By using this concept, we have to find the FCF of two given numbers. तो नंबर के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है वो हमें पता करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे दिए हुए नंबर्स में। तो एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सो एक्सरसाइज 1.2, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है एक्सप्रेस ईच नंबर्स as a product of its prime factor। क्वेश्चन नंबर 1 इज 140। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 to the power a into 3 to the power b into 5 to the power c into 7 to the power d। ऐसा कुछ आ रहा होगा तो आपको a b c d की वैल्यूज निकालनी होगी। प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा ही बनता है। आगे और भी कोई प्राइम फैक्टर होंगे तो वो प्राइम फैक्टर इसमें मल्टीपल में आएंगे, तो आपको वो फाइंड आउट करना है 140 के लिए। Okay,
So this is 140. We will divide this one with 2. Sir, this is 70. Again, we will divide with 2. This is 35. Again, we will divide with 5. So this is 7. So 7 से divide करने पे ये 1 आ गया, stop हो जाएंगे. So we can write it as 2 into 2 into 5 into 7. So this is 2 square into 5 into 7. सबको क्लियर हुआ ये? ऑनलाइन वालों को समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So there is another question that is of 156. Second question, 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. बहुत ही इजी सा है. 156 2 से डिवाइड किया, 7 8 2 से डिवाइड किया, 39 3 से डिवाइड किया, 13. So we can write it as 2 square into 3 into 13. सही है क्या? आ गया सबका? ओके. सो प्राइम फैक्टराइजेशन करना आई थिंक सबको आ जाएगा. एक बड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं. 5th नंबर 7429. इसको सॉल्व कीजिए. 29. हाँ सर 70 90. ओके. तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टी बनाई गई है जानबूझकर. मैं इस नंबर को 2 से नहीं डिवाइड कर रहा हूँ, 3 से नहीं हो रहा है, 5 से चेक किया नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं हो रहा है, फिर 11 से भी नहीं हो रहा है, 13 से नहीं, 17 से डिवाइड किया तो क्वांटिटी कितनी आ रही है चेक करो. अब इस 437 को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये 19 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 23 आ रहा है. सो व्हाट वी आर गेटिंग लाइक 17 into 19 into 23. तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया क्योंकि ये डायरेक्टली नंबर जो डिवाइड हो रहे हैं 17 19 एंड 23 से हो, और ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स. ओके. एंड ये सब हायर नंबर्स हैं. जैसे 2 3 5 से डिवाइड होता है तो वो आसानी से दिख जाता है, लेकिन ये आसानी से दिखते नहीं. ओके. कैन यू लेट मी नो कि 5 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा? If a number is divisible by 5, then what will be the unit place? यूनिट प्लेस किसको बोलते हैं पता है? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 0. What is unit place? 0. So whenever a number is divisible by 5, what will be the unit place? 5 or 5. Either 0 or either 5. Then only it will be divisible by 5. So 5 से divisibility तो हमें डायरेक्टली पता करनी होती है. ओके. कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है? When a number is divisible by 2. Unit digit is even. यूनिट डिजिट इज इवन. ओके. जो भी नंबर्स मैं लिखूं जैसे 1 2 3 4, यूनिट डिजिट इज 4 एंड दिस इज डिविजिबल बाय 2. हेंस ये पूरा नंबर जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा. व्हेन वी से अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, जब सारे नंबर का एडिशन करेंगे, जैसे कि मैं अगर लिख लूं 1 2 3 4, इज इट डिविजिबल बाय 3? तो मैं चेक करूंगा 1 + 2 + 3 + 4. अगर मैं इन सबको ऐड कर लूं तो 3 + 3 6 + 4 it is 10, and 10 is not divisible by 3, hence this number is not divisible by 3. मैं यहाँ पर अगर 1 लिख देता हूँ तो भी नहीं होगा. भी नहीं होगा. अब हो जाएगा. 3 2 1 6, it is divisible by 3, hence this number is divisible by 3.
तो हमें कभी कभी जो चेक करना Sir. होगा हम 3 से डिविजिबल है या नहीं, हम इस नंबर को ऐड करके देख लेंगे और ये पता चल जाएगा ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। ओके, 4 के लिए क्या करते हैं, हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए 4 की, क्योंकि प्राइम फैक्टर में 4 कहीं पे आएगा नहीं। 5 की जरूरत पड़ेगी। 5 के लिए यूनिट डिजिट जो होना चाहिए आइदर 0 होना चाहिए और आइदर 5 होना चाहिए। तो ये थोड़े से फंडामेंटल्स हमें ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट वन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। बताएगा क्या कहता है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक्स? What is composite number? Okay, very good, excellent. What is composite number actually? More than two factors. So composite number are the numbers that have more than two factors. Okay, so can you let me know 12 is a composite number or not? Yes. Yes, as it is divided by 1, number itself 12, 2, 3, 4, 6. This number is divisible by several numbers. Okay. More than 2 जब भी हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर है। अगर मैं 7 की मैं बात करूं, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड 7 itself, not more than that. So this is divisible by only 2 number. So this is a prime number, and जब भी 2 से ज्यादा से डिविजिबल होगा मैं बोलूंगा कंपोजिट नंबर। ओके, तो फंडामेंटल अरिथमेटिक कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन तो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और वही कंपोजिट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। तो हमारे पास कोई भी नंबर दिया गया है, लेट्स से एक नंबर दिया हुआ है 24 और एक नंबर दिया हुआ है 48। मुझसे पूछा जाएगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके मुझे इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। प्रीवियसली जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे एचसीएफ, वो किसके थ्रू था, यूक्लिड लेमा। अब हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज करके हमें इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो हम एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। हाँ, सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ प्राइम टर्म में हम इसे एक्सप्रेस करेंगे। तो इसका जब मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा 24 का, तो किस तरीके से आएगा, 2 into 2 2 into 2 into 2 into 3. So this is 2 cube into 3. Okay, 48 को 2 into 2 into 2 into 2 into 3. So this is 2 to the power 4 into 3. So what is the highest common factor? 3 Okay, देखो 2/3 और 2/3 इसमें भी आ सकता है, इसमें 2/4 नहीं हो सकता। दोनों कॉमन क्या है वो हमें समझना है। तो सर 2/3 इसमें हो सकता है, तो मैं लिखूंगा कि HCF of 24,28 is equal to, sorry 48 is equal to 2 क्यूब, ये तो है ही कॉमन, इनटू क्या ये नंबर भी कॉमन है, सो इनटू 3, क्या कॉमन होकर रिजल्ट दे रहे हैं 24। तो इन दोनों नंबर के बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24 इटसेल्फ है। हमें इस तरीके से ये लिखना होगा, जो कॉमन आपको दिख रहे होंगे उन कॉमन नंबर को यहाँ पे लिखना होगा, वो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिखेगा। कॉमन कैसे पता चल, यहाँ पर 2/4 है ना, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2/3 into 2 into 3। 2/3 कॉमन आ गया दोनों में, ये 3 कॉमन आ गया दोनों में, 2 तो अकेला रह गया, उसको छोड़ दीजिए, 2 वैसा फिर इधर नहीं है। कर लेंगे ऐसा, ओके। एक रिलेशन है HCF, LCM एंड LCM पता होगा सब, व्हाट इज LCM, क्या बोलते हैं इसको, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, आप ये बता सकते हो कि HCF बड़ा होता है या फिर LCM बड़ा होता है? LCM is a bigger number than HCF always, okay। और इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं then what will be product of the numbers for the HCF and LCM। So let's say HCF highest common factor of A comma B, A and B are any positive integer, we are multiplying this one
with LCM of these two positive numbers A and B, then it will be product of the number that is A into B. Write down this one. जिनका लिखा हुआ है उनको लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है. एलसीएम फाइंड आउट करने आता है, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज कर एक एलसीएम फाइंड आउट करना है. लेट्स से numbers are 24 and 48 itself. HCF हमने already find out करा. Now we are asking, we are going to solve for the LCM. Least common multiple find out करना है. कैसे find out करना? Factor तो आ जाएगा 2 cube into 3 and this is 2 raised to 4 into 3. So what is least common multiple? LCM 48. किस तरीके से हम इसको समझेंगे? यहाँ पर एक 2 है और यहाँ पे भी 2 है. हाईएस्ट पावर के साथ कहाँ पे है? ये 2 raised to 4. मैं 2 raised to 4 को कंसीडर करूँ. इनटू दूसरा नंबर कौन सा है? 3 है ना, तो 3 मैंने लिखा है. दिस विल बी एलसीएम. अगर सपोज यहाँ पे 5 होता, ये सब नंबर हटा, सपोज यहाँ पे 5 होता तो मैं, और यहाँ पे 5 नहीं होता, तो क्या मैं 5 को कंसीडर करता या नहीं करता? हम जितने भी टर्म्स रहेंगे सबको हमें कंसीडर करना ही है, क्योंकि लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है. तो मैं यहाँ पे 5 भी कंसीडर कर रहा होता. सो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो राइट डाउन अ क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2. Question is find LCM and HCF and verify that LCM into LCF, LCM into HCF is equal to product of numbers. First one is numbers are 26 and 91. सर स्क्रीन ऑफ हो गई. स्क्रीन ऑफ है, एक मिनट. अभी दिखा शास्त्री जी? हाँ सर जूम करो थोड़ा और सर. एडजस्ट हो गया दिस? यस सर. So there are the numbers 26 and 91. First, we will solve for prime factorization. Okay. So just rough में हम लोग 26 का prime factorization कर रहे हैं. So 230. So 26 is equal to 2 raised to 1 into 13 raised to 1. 91 का prime factorization कोई बताएगा? कितने से divisible करें? So this is 91. 91 is equal to 7 raised to 1 into 13 raised to 1. Okay. So what will be the highest common factor of 26 and 91? Common term देख लो इसमें से कौन कौन से? Sir, only 13 is the 13 common, है. और 13 यहाँ पर one time है, 13 यहाँ पर भी one time है. 13 will be the LCM. What will be the LCM? LCM के लिए मैं टर्म्स चेक करना स्टार्ट करूंगा. सर 2 वन टाइम है, 2 लिख लिया. 2 यहाँ पे नहीं है, सो 2 यहाँ से ही स्टार्ट होगा, और 1 टाइम है तो मैंने 1 टाइम लिया. 13, सर 13 वन टाइम यहाँ पर भी, 13 वन टाइम यहाँ पर भी है. हाईएस्ट जो रहेगा वही लिखेंगे. 13 लिखा इनटू 7, 7 यहाँ पर. व्हाट विल बी द नंबर? मल्टीपल कर लीजिए. 182. So now we have to show that LCM into HCF is equal to product of the number. Sir LCM कितने आ गए? LCM is 13. Sorry, LCM is 182 and HCF is 13. इन दोनों को प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए? 26 into 91 के इक्वल होना चाहिए. प्रोडक्ट करो, क्या ये 26 into 92 दोनों इक्वल आ रहे हैं? यस, वो ऑलवेज होगा. सो
ऐसा प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये चीज ध्यान में रखना कि हम डायरेक्टली ऐसे इक्वल नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, ये 13 है, इनमें से कोई नंबर 13 है क्या? नहीं, No. दिस इज व्हाट 26, तो मैं इसको 32. 26 बनाना चाहता हूँ, तो इससे मैं क्या कॉमन लेकर इसमें मल्टीपल कर दूं, 2, so we will write is 91 into 2 into 13, we will write it as 91 into 26, these are two numbers 91 and 26, hence equal. Red on next to 336 and 54 फाइंड आउट कीजिए। एलसीएम फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है, देन आफ्टर प्रूफ करना है। आ गया? नहीं हो रहा? हो गया? okay. तो जिनसे नहीं सॉल्व हो रहा है वो देखना स्टार्ट कर लो। 54 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 से डिवाइड किया 27, 3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, सो वी कैन राइट 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 क्यूब, लिख सकते हैं ऐसा। ओके, 336 is divisible by 2 as last digit is divisible by 2, so this is 168। 2 से डिवाइड किया 8, 4, 2 से डिवाइड किया 42, 2 से डिवाइड करेंगे 21, 2 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 7, so we can write it as 2 raised to 1 2 3 4, 4 into 3 into 7, so what will be the highest common factor? दोनों में देखो 2 कितना कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 आएगा। पहले तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन आ रहा है,
2 लिखा। सर 3 कॉमन आ रहा है, 3 लिखा। 7 कॉमन नहीं है इसलिए नहीं लिखना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 6। व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल? सर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 raised to 4 है। हायर नंबर इज 2 raised to 4, सो वी विल कंसीडर 2 raised to 4 इनटू, यहाँ पे 3 क्यूब है और यहाँ पे 3 है। हाईएस्ट नंबर इज 3 क्यूब, सो वी विल राइट 3 क्यूब। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 नहीं है, तो एक कंसीडर तो करना ही, 7 लिखना है। अब इनको मल्टीपल करके देख लीजिए, 3024, सो एचसीएफ इंटू एलसीएम, HCF into LCM. HCF is 6 and LCM is 3024. Okay. अब आपको बताना है कि यहाँ पर 54 है, 6 में कितने से मल्टीपल करेंगे? 54, 9. So we will write 6 into 9 into 336. So 3 into 9, 54 into 336. ये प्रूफ करना है। Okay. So इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्वेश्चंस आगे आने वाले टाइम पे कैसे चेंज करेगा उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। Write down the question. The number of zeros at the end of the number 120 raised to 12 is, कुछ idea? Number of zeros at the end of the number 120 raised to 12. Okay. नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहे हैं नंबर के एंड में, तो नंबर के एंड में अगर मैं जीरोस की मैं बात करूं तो वो 10 की बात हो रही है एक्चुअली, और 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 and 5। तो 2 and 5 अगर सपोज कि किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया और मुझे 2 क्यूब एंड 5 स्क्वायर मिला, हाउ मेनी जीरोस आर देयर? सर 2 स्क्वायर यहाँ से आएगा, 5 स्क्वायर यहाँ से आएगा, 10 स्क्वायर मिलेगा और एक 2 बाहर में रह जाएंगे। तो जो इसमें से लिस्ट नंबर दे रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर लेंगे जीरो। सो 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या हैं? आ गया? सो वी कैन राइट 120 इज इक्वल टू 2 to the power 3 into 3 into 5। अब इन सबके ऊपर में 12 पावर करने हैं। सर 12 पावर करोगे तो यहाँ पर क्या लिखना होगा? 36 into 3 to the power 12 into 5 to the power 12। ओके, 2 and 5 का पेयर समझना है कि मैक्सिमम कितने बनेंगे? 12 ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 12 है तो मुझे यहाँ से भी 12 ही लेना पड़ेगा। हेंस number of zeros at the end of 120 raised to 12 is equal to 12 only। वो वहां पे कीपैड होगा, कोई कीपैड पे नंबर प्ले टच पैड है ना वहां पे, टच पैड होगा, टच पैड पे प्रेस करो। स्पेस दबाया हुआ है। हाँ पेंट है क्या वहाँ पे? ओपन पासवर्ड नहीं है। एक बार दबा रिवाइंड अप करना। सो क्लियर हुआ ये सबको क्वेश्चन? सर सॉरी नहीं है ना।
हेलो हेलो गाइस, आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. तो बेटा आज की क्लास अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल कंटिन्यू करेंगे सेम इन द सेंस जो आपके शेड्यूल में लिखा हुआ वो वाली क्लास कल होगी। आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है गाइस? Yes, sir. Bye, sir. ओके देन, ऑलराइट। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले अगले दिन मिलते हैं फिर। Sir, कल Thank you, साइंस ना? हाँ बेटा, कल साइंस। ओके। ओके बेटा, बाय 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 सर गाइस, थैंक क्वेश्चन यू। के लिए रेडी है ना कल? कौन सा वाला? क्वेश्चनिंग अच्छा। के लिए सर कल तो बहुत सारे डाउट है। शास्त्री जी, आप डाउट लेके आओ, आप मेरे सवालों और जवाबों के लिए तैयार रहना बस। यस सर। चलो ठीक है, मिलते हैं कल। बाय सर।